Hello students, we will discuss about magnetic dipole now, and further we will discuss about next topic related to this. What is the magnetic dipole? A bar magnet is identical to a magnetic dipole system of two magnetic poles of equal and opposite distance separated by a finite distance. It means if any bar magnet having pole north pole and south poles, then it is called magnetic dipole. Okay, and magnetic pole strength is plus m and minus m, that is the pole strength small m. Okay, and separated by some small distances, that is north pole and south pole, separated by, let's suppose, distance l. Okay, and magnetic moment is a vector quantity and its direction is from south pole to north pole, from south pole to north pole. It means let's suppose that this is a bar magnet and this is a north pole, this is the south pole. Then magnetic moment is directed from south pole to north pole, from south pole to north pole. This is the direction of magnetic moment because it is a vector quantity. Magnetic moment m is equal to I into A. It is a product of area and current. Okay, let's move next topic. Our next point is bar magnet is identical, that is also that point. Don't worry, but you can see this in this figure. This is very important figure related to the dipole, magnetic dipole. This is pole strength plus m minus m, but you know, capital M is not a pole strength, it is a magnetic moment, magnetic dipole moment. Okay, magnetic dipole moment. Okay, and a magnetic dipole moment capital M is equal to m l vector L. Vector L is the displacement, m is the pole strength, and capital M is the magnetic moment. Okay, let's move next topic, that is the magnetic dipole and electric dipole. Very important topic. Electric dipole, when we compare in between magnetic dipole and electric dipole, then there is some similarity, that is we know that in a magnetic dipole, S and N is the pole of any bar magnet, that is the magnetic dipole. But electric dipole having plus q charge and minus q charge, the directions of electric dipole is from positive charge to negative charge, and the direction of magnetic moment is from south pole to north pole. Okay, we can say that here is similarity of just as we take plus q charge and minus q charge, and in the case of magnetic dipole we take plus small m and minus small m. It means this is a similar to this and this similar to this. Okay, let's move to our next topics, that is field due to magnetic dipole. Okay, field due to magnetic dipole. We know that magnetic field at axial position, magnetic field at axial position due to dipole, magnetic dipole, that is B axial is equal to mu naught by 4 pi 2 m by r cube. But for equatorial point, that is B equatorial is equal to mu naught upon 4 pi and magnetic moment, that is vector m upon r cube. There is only difference 2. In axial position we take 2 and in equatorial position we will not consider 2. Means there is not 2, यहाँ पे 2 नहीं है. ओके, अगर 2 होता तो ये क्या होता, एक्सियल होता. 2 हटा दो तो इक्वेटोरियल. तो ये हमें याद करना है, इसका डेरिवेशन हमको जो है ज़रूरत नहीं है इसको, इसका डेरिवेशन की, बस हमें इतना क्या कर लेना, कंसीडर कर लेना, याद कर लेना. ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारी नेक्स्ट टॉपिक है
ये बी एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ बार मैग्नेट। अगर एनी पॉइंट की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला में याद होना, दैट इज वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये जो यम है क्या बी के सिमिलर है कि नहीं? यम क्या था, मैग्नेटिक था, ये इलेक्ट्रिक है, तो ये कुछ ना कुछ सिमिलर है ना। तो हम फार्मूला देख रहे हैं कि सेम ही आ रहा है यार, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में पी हुआ करता था पी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में यम हुआ करता था, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई तो उसको हमें याद करना है, ठीक है। तो अगर हम सिमिलैरिटी से कंपैरिजन करके याद करेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि इनका क्या कॉन्सेप्ट, इनका क्या ट्रिक है वो आपके सामने लेकर आऊँ। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर लाऊंगा, बस आप लोग बने रहिए, है ना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है आपको बताएंगे सोलेनॉइड में। पहले यहाँ पे आप समझिए, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क होता है उसको समझिए। टॉर्क टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, इसको आप याद कर लो, ठीक। और वर्क डन बाय बार मैग्नेट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये आपको याद करना होगा। और ऐसा नहीं है, आप बस याद कर लो ना, टाउ बराबर देखो यम क्रॉस बी दिया है, यम क्रॉस बी लिखो या फिर लिखो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। ये देखो डाइपोल हमारा है ना, ये हमारा बार मैग्नेटिक तो डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब क्या कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एंगल थीटा पे है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा ही, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर। तो जब ये रोटेट करेगा, है ना, या फिर आप इसको इधर कर लो या इधर कर लो, जो भी है, अगर यहाँ से आप रोटेट कराना चाहते हो, रोटेट करेगा तो टॉर्क तो लगेगा ही। और टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। तो जब टॉर्क है ना, जब ये टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा, और जब रोटेशन होगा तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, तो वो ये होगा। तो ये आपको याद करना है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये जो टॉर्क लगने के बाद ये जो टाइम पीरियड हमें निकालते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बराबर होता है, देखो लिखा है इसमें, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको याद करना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट और जे में तो अक्सर ये पूछता रहता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है कि टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, और ये मैंने बता चुका हूँ, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, दैट इज टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, है ना। और फिर हम बात करेंगे वर्क डन ऑन ए बार मैग्नेट बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। अब देखो हमने ये बार मैग्नेट को रख दिया, थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट करवाया थीटा में, तो कुछ तो वर्क डन हमने किया ना। जो वर्क डन हुआ है या जो हमने वर्क डन किया है वो कितना हुआ है, जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और वो होगा हमारा, है ना, वर्क डन ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको हमें याद कर लेना है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये उतना ही होगा, है ना, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इसका नेगेटिव फॉर्म है, क्योंकि वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ये दो आपको, है ना, प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। और ध्यान दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, तभी आप कहीं ना कहीं से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए बार मैग्नेट, अगर नेट टॉर्क हमारा जीरो हो जाए, है ना, और थीटा बराबर भी जीरो हो जाए, है ना, ये यू किसके बराबर हो जाए, माइनस एम बी बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बस ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, है ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये जो सब आप याद कर लो, नोट डाउन कर लो, और हम लोग क्या है ना, आराम से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।